you for you have introduced me for your good and kind words, and I thank you for your fellowship. That I had a real good time with you when we were in Calcutta while we were in the CBS campus, and after that during the Corona period also you have extended your help to serve the people, providing food kits, and it was a wonderful time. And I'm very thankful to God, for you and giving us a kind of fellowship. And previously, one time I joined with this team and shared God's word. And this time again, I got this privilege to share God's word with you all this evening. It's always joy and it's always a privilege to share God's word, because whenever I get opportunity or invitation to share God's word, and immediately I try to say yes, because when I am asked to preach, the first one who is receiving the blessing from God is me. When I prepare the message, I receive the blessing from God, and then after that only is the blessing that you are going to get. So uh, I always thankful and praise God for giving me the opportunities to share God's word in any platform. And my friend Sanjeev also joined with us this evening. I shared this link to him, and he is in Bihar doing the ministry in school ministry and children ministry. And he very good brother, very loving. And when he was studying in Kanyakumari Bible College, that time onwards, I know him, and he was with us for some time. Then I came here in Andhra Pradesh, and he went to Bihar, and we are doing God's ministry in God's field anyhow. At present, as Pastor Sudip Nanando, as he has mentioned, we are working among the Sora tribes. Sora tribe, actually we are in the border of Andhra Pradesh and Orissa. We are staying in Andhra Pradesh, and we are doing ministry in both the states. And my daughter, she is doing her final year MTH, Master of Theology. She will be graduating this March 24th. Remember her in your prayers and pray for her future life also. And my son, he is going to complete his BPed, Bachelor of Physical Education. He is also going to complete this April, and he may go for higher studies, or he may join in any job, any teaching job. So my wife, myself, we are together in the ministry field and doing the ministry. And really, God has been so faithful and good to us in time of all our needs, crisis, in time of difficult situation. And God is faithful to us. One verse Bible, no, though we are unfaithful, God is faithful to us. That's very true. We are unfaithful, we are disloyal, and we forget God. We don't remember, we don't read Bible, we don't pray, we don't go to worship. But still, God is faithful, because He is a faithful God. He fulfilled the promises. And in this, here in Sora, among the Sora tribe, God is doing great things. The people are open to gospel, and they are very interested in listening to God's word. Actually, they are farmers. All of them are farmers. They're poor farmers. Uh, for their livelihood, they depend upon borrowing money from the landlords, from the shopkeepers, and the interest rate is it is 10%. 10% the sense yearly 120%. If they get loan 10,000 rupees, they have to pay 22,000 rupees, 12,000 rupees interest for 10,000. You pray that for these things to be removed, and people will be come out of this debt, because they have to get some kind of loan. Otherwise, they cannot maintain their family, their farmer production and plantation and all those things. So kindly remember them in your prayers, and we sincerely seek your prayers for the outpouring of the Holy Spirit. And we need to see a revival among this tribal group. They are Christians,
maybe around 50% of the people or population in Andhra Pradesh are Christians. Yet there are many people to be reached, but we need the outpouring of the Holy Spirit so that the God's work may be continued in a mighty way. We want to see a revival among this community. And we believe that God has a plan and purpose for bringing us here. And we are the first missionaries from ECI and IMM here in this tribal group. And pray for us, especially to learn the language. We had to learn 2 languages, Telugu and Sora. I may that God help us to learn the language soon so that we can communicate the gospel, God's word with them in their own mother tongue. Thank you. May God bless each and every one of us as we wait upon the Lord to receive God's word. And shall we close our eyes and look to the Lord in prayer? Our Almighty God, Heavenly Father, you are our Father. And Lord, you know our hearts. You know our desires. You know our thoughts and motivations. And Lord, you know every inner things of us, Lord. This evening, Lord, we pray that you will speak to each and every one of us, Lord. Lord, we want to hear your words. Lord, we want to hear your voice this evening time, Lord, through this, the burning ministry, Lord. Lord, your name may be glorified. Lord, speak to me, speak to us, Lord. Speak through me, Lord, so that your name may be glorified. Lord, I commit myself under your cross. Hide me, and Lord, you will be exalted. In Jesus' precious name I pray. Amen. सबको जय मसीह, सबको जय मसीह. Praise the Lord. प्रभु सबको दया करे, अनुग्रह करे. इस शाम को समय में मैं परमेश्वर को वचन को और बोलने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा संदर्भ दिया है. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं. This evening, my message topic is seek the Lord in the time of your troubles, in your distress. Seek God in your distress. मेरे प्रिय भाइयों और परमेश्वर के संतान, और परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं जब हमारे कठिन और कष्ट संकट का परिस्थिति आते हैं तब हम लोग परमेश्वर को कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मैं प्रभु के साथ हूं, प्रभु के लिए मैं अच्छा हूं, मैं प्रभु को मानती हूं, लेकिन प्रभु हमको कुछ नहीं कर रहा है. बहुत समय में हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं जब हमारा प्रार्थना अनसुनी होता है, हमारा प्रार्थना को इमीडिएट में रिस्पांस नहीं मिलता है, तो तुरंत हम लोग क्या सोचते हैं, मैंने कुछ क्या हुआ है मेरे जीवन में, ऐसा क्यों, प्रभु हमारे जीवन में क्यों ऐसा करता है, प्रभु ने हमको भूल गया है, प्रभु ने हमको छोड़ दिया है, प्रभु ने हमको पसंद नहीं करते हैं. बहुत सारा बात हमारे अंदर में ही हम लोग बात करते हैं. अगर प्रभु रियली हम लोग को रिजेक्ट कर दिया है, नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन हमारे मन अंतरिक्त में ही हम लोग क्या करते हैं, हमारा बहुत सारा सोच आ जाते हैं. मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, इस शाम को समय में जब भी आपके जीवन में कोई भी ऐसा परिस्थिति, ऐसा कष्ट, संकट, परेशानी के समय में हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग प्रभु को खोजना चाहिए, प्रभु के उपस्थिति में आना चाहिए, प्रभु के साथ हम लोग बात करना चाहिए, हमारे मन को खोलकर, हमारे सोच को खोलकर सपा परमेश्वर के सामने बोल देना. आप क्या सोचते हैं, क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, क्या सोच आपके मन में है, सब चीज आप जब बोलते हैं, खुला खुली बोलते हैं, उस समय में प्रभु सच्चाई में आपको जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा. आज इस शाम को समय में बाइबल में एक एग्जाम्पल के साथ और परमेश्वर के वचन में बोलने चाहता हूं. और दूसरा इतिहास और 33 अध्याय और 12-13 और वचन में हम लोग देखते हैं. दूसरा इतिहास और 33 अध्याय और 12 और 13 वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं, तब संकट में पढ़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की. तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया. तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा
ही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं, और परमेश्वर के वचन में जब हम लोग यहाँ पर देखने के समय में, जब मनासे के जीवन में संकट में पड़ रहा था, संकट में पड़ने के समय में मनासे ने क्या किया? परमेश्वर को, यहोवा को मानने लगा। तब तक उनके जीवन में संकट नहीं आया, कष्ट नहीं आया, उन्होंने परमेश्वर को नहीं मान रहा था। आप शुरुआत में पढ़ेगा तो 33 अध्याय में, और पहला वचन से लेकर आप जब पढ़ेगा तो वहां पर मालूम होगा, मनासे जब राजी हुआ, राजा बना, 12 वर्ष था। जब उनके उम्र 12 वर्ष था, उन्होंने राजा बना। मनासे के पिता यजेकिया के बाद में मनासे राजा हुआ है। जब मनास राजा होने के समय में क्या हुआ है, उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था उन्होंने उसको किया है। परमेश्वर के दृष्टि में जो प्रसन्न नहीं था और बुरा था, वो और वो सब काम ने उन्होंने करने लगा है। और हम लोग बाइबल के वचन में जब पढ़ेगा तो मालूम होगा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और 3 वचन से लेकर अब जब पढ़ेगा, उसने उन ऊंचे स्थानों में क्या क्या ये मनासे ने किया है। The problem with Manasseh, the evil things, what he did in the sight of the Lord is many. It is mentioned here from verse 3 onwards. If you read verse 3, क्या किया है? उन्होंने ऊंचे स्थानों में जिन्हें उसके पिता की यजेकिया ने तोड़ दिया था और फिर बनाया। जब किंग यजेकिया और राजे करने लगा था, और उसका समय में ऊंचा ऊंचा स्थान, वहां पर जो वेदी था और वो अन्य देवताओं को, खास करके बाल देवताओं को वेदी था, वो सबको और यजेकिया राजा ने तोड़ा, मनासे के पिता। लेकिन ये मनासे क्या किया है? जो पिता तोड़ा उसको वो दोबारा बनाया, वही हम लोग देखते हैं। और वो बनाया है, और क्या किया है? और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियों और अस्रो नामक मूर्ते बनाए। और बाल देवता के लिए वेदी बनाया और अस्रो देवताओं के लिए मूर्ति बनाया। ये मेरे प्रिय मित्रों, ये मनासे यहूदा राजा है, और परमेश्वर को जानना था, परमेश्वर को अच्छा से जाना था। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था अपने एक ही परमेश्वर को आराधना करना, दंडवत करना, उसको छोड़कर और किसी को आराधना नहीं करना। सब कुछ उन लोगों को मालूम है, लेकिन मालूम होकर भी मनासे ने परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बुराई किया है। और क्या किया है? जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो उन्होंने क्या क्या करके यहाँ पर लिखा है, वहां पर हम लोग देखते हैं। और परमेश्वर के वचन में जब हम लोग देखते हैं 4 वचन में, और उसने यहोवा के उस भवन में वेदियों बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था। परमेश्वर को भवन में ही वेदी बनाया, और जो गणों के लिए, तारागणों के लिए और सूर्य चंद्रमा के लिए वेदियों बनाया। कहां पर? परमेश्वर को भवन में, जो सालोमोन ने बनाया, उस परमेश्वर के पवित्र मंदिर में उन्होंने क्या किया है? और उन्होंने वेदी बनाया, उन्होंने और सारे और तारागणों को आराधना करने लगा। ये मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग देखते हैं, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं, और ऐसा, और 6 वचन में, फिर उसने हिन्नोम के बेट की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया। और इसमें लिखा है, he burned his sons as an offering in the valley of the son of Hinnom. अपने बच्चों को, अपने बेटा को और होम बलि दिया है, ह्यूमन सैक्रिफाइस इन्होंने किया, मनासे ने किया। जो और जितने ये यहूदी के राजा था उन्होंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन ये जो मनासे ने सब राजाओं से ज्यादा परमेश्वर के दृष्टि में बुराई काम करता था। ये मेरे प्रिय मित्रों, उन्होंने अपने बेटों को और होम बलि दिया है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, और वहां पर हम लोग देखते हैं, और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता था। ये मेरे प्रिय मित्रों, जब ये वचन को मैं पढ़ रहा था, अभी आज हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर को जानते हैं,
और हम लोग डायरेक्ट में मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हम लोग दूसरा देवताओं को आराधना नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे, मतलब वो तो डायरेक्ट होता है, हम लोग नहीं करेंगे। कोई भी मूर्ति को घर में लेके नहीं रखेंगे, कोई भी मूर्ति को सामने हम लोग दंडवत नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चीज और ये मना से किया वो हमारे बीच में है। अभी इसमें देखिए, और इसमें 6 वचन में, और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानना, शुभ अशुभ, गुड टाइम बैड टाइम, नो, इन कैलेंडर वी सी, कैलेंडर में लिखा हुआ है अच्छा समय कितना घंटा से, और अशुभ समय कितना घंटा से शुरू होता है। कभी भी हम लोग शादी कर अच्छा भलाई को, कुछ अच्छा काम के लिए हम लोग टाइम फिक्स करते हैं, वो अच्छा गुड टाइम को हम लोग देखते हैं। कब अच्छा टाइम है, कितना बजे, सुबह 6 बजे अच्छा टाइम, ठीक है। उसी समय में हम लोग घर में कोई नया घर हम लोग डेडिकेट करना है, कोई नया दूसरा घर में प्रवेश करना है, वो अच्छा समय है, खराब समय है। ये मेरे प्रिय मित्रों, हमारे मसीह लोगों के जीवन में भी यही है, अच्छा समय को देखना और अशुभ समय को देखना। यही मना से नहीं किया। और क्या किया है हम लोग देखते हैं वहां पर, और टोना और तंत्र मंत्र करना, टोना और तंत्र मंत्र को करना है। ये मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग जादू टोना देखते हैं, जादू टोना। जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं उन लोगों को मालूम है, जो तरक्केश्वर ना, तरक्केश्वर का वहां पर जादू टोना करने का बहुत होता है। और किसी को खराब करना है, और किसी के ऊपर में जलसी आता है, हम लोग से वो बड़ा ज्यादा होता है, धनवान होता है, तो किसी को कुछ नाश करने के लिए जादू टोना करते हैं। जादू जादू टोना करके भविष्य को और मानने के लिए, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे भविष्य कैसा रहेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं फॉर्चून टेलिंग, फॉर्चून टेलिंग मतलब एस्ट्रोलॉजी और राशि, राशि बोलते हैं ना, क्या राशि, आपके राशि क्या राशि, सिंह राशि, धनुष राशि, और स्टार, आप क्या स्टार में पैदा हुआ है, कौन सा डेट में पैदा हुआ, आप कौन सा मिनट में पैदा हुआ, ये स्टार को देखते हैं। और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, और क्या क्या नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, और क्या है, हमारा अंगूठी में बहुत कलर का पत्थर का रिंग, पत्थर का क्या करते हैं, रिंग डालते हैं, क्या के लिए, एक पत्थर इसी के लिए, एक पत्थर दूसरा काम के लिए। ये सब हम लोग ना परमेश्वर से दूर लेके जाता है। आपके विश्वास परमेश्वर के ऊपर में नहीं है, पत्थर का ऊपर में है। ये पत्थर तो कुछ नहीं कर सकता है, उसको कुछ वैल्यू होता है, लेकिन उसको कोई वो कुछ नहीं कर सकते। पत्थर खुद में मरा हुआ है चीज है, और मरा हुआ चीज आपको क्या कर सकते हैं, आपको फॉर्चून को, आपको फ्यूचर को क्या कर सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, ये जो अच्छा सुबह समय देखना है, जादू टोना करना, और एस्ट्रोलॉजी देखना, और राशि देखना है, पामिस्ट्री देखना, ये सब परमेश्वर के विरोध के काम। कोई भी चीज जो हम लोग परमेश्वर को विश्वास से दूर लेके जाता है, वो सब परमेश्वर के दृष्टि में बुराई होता है मेरे प्रिय मित्रों। और इस शाम को समय में, और यही वचन आपके बीच में बोलने के लिए प्रभु ने हमको दिया है। हमको मालूम नहीं है आप लोग कौन कौन है, कहाँ का है, आप लोग कितने जन ऐसा देखते हैं, नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोलने के लिए बताता है, इसलिए बोलता हूँ। और और क्या करते हैं हम लोग, ओजा को वोमेन्स बोलते हैं, मतलब गुरु ओझा बोलते हैं। कोई कोई गांवों में गुरु ओझा के पास जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है और गुरु ओझा के पास जाते हैं, उसको बुलाते हैं। वो गुरु ओझा, ये सोर्सर, ये सब क्या है ना, जो मारे हुए व्यक्ति के नाम में शैतान के साथ और लेट करके हमारा जिंदगी को भला करने के लिए कोशिश करते हैं। ऑलरेडी मरा हुआ व्यक्ति है, उनको आत्मा कहाँ है, इधर है कि नहीं है पता नहीं है, वो कहाँ है, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति के नाम पर हमारा भविष्य को जानने के लिए, हमारे भविष्य को और भलाई को करने के लिए हम लोग कुछ कुछ कोशिश करते हैं। ये परमेश्वर के विरोध में सबसे बड़ा बुरा है, सबसे बड़ा विरोध है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं। ये जादू टोना, ये मांद्रिक तंत्रिक, और जो पत्थर और ताबीज, ये सबको करते हैं, ये परमेश्वर हम लोग से प्रसन्न नहीं है। हमारे विरोध में ये सब काम होता है। नेचुरल का ये
नेचुरल का अगेंस्ट हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, ये सब में हम लोग ध्यान देना चाहिए। ये सब अगर आप में किसी के पास होने से उसको हम लोग तुरंत निकाल देना। आप पत्थर का जो अंगूठी डालते हैं आपका सुंदरता के लिए, वो ठीक है, लेकिन पत्थर के ऊपर विश्वास रख के वो अंगूठी आप लगाते हैं, तो आप वो अंगूठी को खोल कर फेंक दीजिए। उसमें 1 रुपया को भी आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध है मेरे प्रिय मित्रों। और हम लोग देखते हैं ऐसा परिस्थिति में जब मनासे ये सब बुराई काम करता था, परमेश्वर ने उनके पास आकर परमेश्वर अपने वचन को प्रकट किया है। मनासे को मानने के लिए परमेश्वर ने बोल रहा था। यहाँ पर हम लोग 10 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। 10 वचन में लिखा हुआ है, और यहोवा ने मनासे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। डेंजर कहाँ है मालूम है ना? जब हम लोग परमेश्वर बात करता है तो वहां पर ध्यान नहीं देते हैं, वहां पर डेंजर हो जाता है। आज इस शाम को समय में मालूम नहीं है, आज प्रभु में हमको ये वचन बोलने के लिए अगुवाई करते हैं, तब हम लोग थोड़ा सुधरना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्यों, मेरे पास क्या है, मैं परमेश्वर के विरोध में कोई चीज है क्या? तब हम लोग को सोच कर, हम लोग को थोड़ा जांच कर, इलाज कर कर, मेरे अंदर में कुछ है परमेश्वर के विरोध, मैं किसको विश्वास करते हैं? मैं परमेश्वर यहोवा को, यीशु को मैं विश्वास करते हैं कि मैं ये जादू टोना, ये अच्छा समय, बुरा समय को, और कभी कभी हमारे जीवन में कुछ कष्ट होता है तो क्या बोलते हैं, आपके दिमाग में ऐसा लिखा हुआ है, आपके सिर में लिखा है। हाँ, है ना? ये तो रिटन इन योर हेड, दैट इज व्हाट हैपनिंग फॉर यू। ये सब बुरा है, आपके सिर में कुछ लिखा नहीं है, आपके सिर में भला ही लिखा है। परमेश्वर आपके जीवन में भला ही करता है। परमेश्वर जो कुछ करता है आपके भलाई के लिए, बुराई कर कर कुछ नहीं है। आपको जीवन में अगर बुराई होने से भी, वो बुराई को भी और भला करना परमेश्वर के काम है। वही हम लोग को बाइबल में देखते हैं, यूसुफ के जीवन में, जोसेफ के जीवन में, उनके भाई लोग ने उनको बुराई करता था, बुराई कर कर उनको इजिप्ट देश में उनको भेज दिया था, पैसा के लिए उनको भेज दिया था। दे सोल्ड हिम फॉर मनी। लेकिन परमेश्वर ने वो बुराई को भी बदला, वो भलाई किया है। यही हमारे विश्वास है, यही हमारे विश्वास होना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई कठिन संकट परेशानी जो भी होने दीजिए, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु सब कुछ संभालेगा, प्रभु हमको देखभाल करेगा, ये सब कुछ नहीं है करके बोलने का हिम्मत होना चाहिए। उस समय में हम लोग सोचना नहीं है, ये तो हमारे सिर में लिखा है, ये तो मेरा क्या बोलते हैं, ये मेरा ये तो मेरा फेट, ये मेरा फेट है, ऐसा हो रहा है। नहीं, आपके फेट, आप अच्छा ही रहना, प्रभु के संतान ही रहना, यही परमेश्वर का योजना है। यहाँ पर देखते हैं, जब परमेश्वर ने और मनासे के साथ और उनके प्रजा के साथ बात किया है, उन लोग ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, और उनको, और यहोवा ने उन पर असुर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और वे मनासे को नकल डालकर और पितल की और बेड़ियों से जकड़कर और बाबिलोन को ले गए हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हुक लगाकर और उनको गुलाम में और बंदियों में लेके चले गया। एक राजा अभी क्या हो गया है, ये बंदियों में लेके चलने पड़ा, क्या के लिए? परमेश्वर को और बात को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये मेरे परमेश्वर के संतान, कभी भी और कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश आप जब सुनते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि कभी भी जब हम लोग के पास प्रभु के वचन आता है, तो उसमें हम लोग ध्यान देना है। क्या के लिए प्रभु इस वचन को आज हमको सुनाने के लिए दिया है, मैं क्या के लिए इस वचन को मैं सुनता हूं, परमेश्वर का इच्छा क्या है करके हम लोग जानना जरूरी है। मेरे प्रिय मित्रों, ये मनासे के जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में जो बुराई करता था, उसमें कोई भी चीज हमारे पास है क्या? हम लोग ध्यान देना चाहिए। अगर है तो उसको छोड़कर परमेश्वर के सामने भलाई करने के लिए हम लोग चालू करना। यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट होता है मनासे के जीवन में, एक टर्निंग पॉइंट परमेश्वर ने उनको दिया है। वहां पर हम लोग देखते हैं, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। जब संकट में पड़ने लगा,
परमेश्वर को उन्होंने मानने लगा। कोई कोई संकट होने के समय में परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, और जब हम लोग संतोष में रहते हैं परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। संकट आता है तो हम लोग जादू टोना देखने के लिए चले जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन संकट का समय में परमेश्वर के खोज में आना चाहिए। कितने आपके जीवन में कितना संकट बढ़ते जाता है, और उससे ज्यादा परमेश्वर को हम लोग पुकारना है, परमेश्वर को खोजना है। कभी भी हमारे संकट में हम लोग को छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारा मदद में आते हैं। और भजन संगीता साम्स 34 को आप पढ़कर देखे हैं तो जो धर्मियों को तो बहुत सारे कष्टों तो आती है, वरन परमेश्वर हर प्रकार के कष्टों से उनको निकालता है। हालेलुया, वही परमेश्वर के काम है। और जो धर्मी है, जो परमेश्वर के संतान है, बहुत प्रकार का संकट आ सकता है, परेशानी आ सकता है, बीमारी आ सकता है, मुसीबत आ सकता है, फाइनेंशियल नीड आ सकता है, बहुत प्रकार का टेंशन आ सकता है। लेकिन परमेश्वर के दृश्यों पर जब हम लोग खोज में लगते हैं, उस समय में सारे संकटों से प्रभु हम लोग को छुड़ाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला, सेनाओं को यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का नाम ऊंचा गढ़ है। जब नीति धर्मियों वहां उसी के नाम को लेकर वहां पर बचाता है। ये मेरे प्रिय मित्रों, इस शाम को समय में आपका जो संकट का समय आता है तो और भी प्रभु के ओर चिल्लाना है, उसको बुलाना है, रोना है, और उपवास करके प्रार्थना करना। प्रार्थना का समय को ज्यादा कीजिए, बाइबल पढ़ना ज्यादा कीजिए, जब आपके जीवन में परमेश्वर छुड़ाएगा। बाइबल में हम लोग देखते हैं, और मार्कुस के 10 अध्याय में और 46 वचन के 46 से लेकर अंत तक हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर एक अंध व्यक्ति का बारे में हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह ने यरीहो के ओर जा रहा था, उस समय में वहां पर एक अंध व्यक्ति था, उनके नाम है क्या है, बर्दिमेस। बर्दिमेस जब उसको तो अंधा था, लेकिन और परमेश्वर यीशु मसीह वो उस रोड में जाता है करके उन्होंने सुनकर क्या किया है, और यीशु मसीह को बुलाता है। वो यीशु मसीह दाऊद के संतान, मुझको दया कर, मुझको दया कर। तब उसके पड़ोसी ने उनको क्या कर रहा था, थमा रहा था, ए चुप रहो, चुप रहो, क्या क्यों चिल्लाता है, चुप रहो। लेकिन उन्होंने उससे भी बढ़कर अधिकर, ए दाऊद के संतान मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो करके चिल्लाने लगा। तब क्या हुआ है, यीशु मसीह वहां पर खड़ा हुआ और उनको बुलाने के लिए लोगों को भेजा है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय मित्रों, जब हमारे जीवन में संकट आता है, परेशानी आता है, जब हम लोग चिल्लाकर परमेश्वर को बुलाते हैं, परमेश्वर वहां पर रुक जाता है, हमारा प्रार्थना को सुनता है, और परमेश्वर हमारे उत्तर देने के लिए वहां पर रेडी हो जाता है। वहां पर बुला के उनको लेके आने के समय उनसे पूछा, तुमको क्या चाहिए? मैं देखने चाहता हूं, मैं देखने चाहता हूं। ये मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं, और मत्ती का 7 यूहन्ना का 14 और लूका का 10 में, ये सब में जब हम लोग देखते हैं, और परमेश्वर के नाम में जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मैं दूंगा करके परमेश्वर ने हमारे लिए वचन दिया है। मेरे प्रिय मित्रों, इस शाम को समय में आपके परिस्थिति क्या है मुझे नहीं मालूम, आपका डिस्ट्रेस क्या है, डिस्करेजमेंट क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके परिस्थितियों में, इस परिस्थितियों में प्रभु को पुकारिए, और पहले से अधिक इतने दिनों में आप जितने पुकारा उससे भी बढ़कर पुकारिए। आपका प्रार्थना समय को इंक्रीज कीजिए, आप उपवास प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर खड़ा होकर आपको बुलाएगा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं तुमको क्या करना करके पूछेगा, आपको उत्तर देगा, डायरेक्ट परमेश्वर ने बात करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, जब भी आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के समय में खाली उनको बोलते नहीं रहना चाहिए। Whenever you pray to God, don't keep on telling, keep on asking, but wait for a moment what God replies you. We don't listen to God. We always keep on asking, but we don't listen to God. Whenever you pray, give time to listen to God, what God responds to you for the prayer request, what you have asked him. He will definitely he'll respond. It's a practice, you have to do it. हम लोग प्रार्थना में वही हम लोग को सीखना चाहिए। प्रार्थना में लगातार बोलते रहते, प्रभु ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो। और एक प्रार्थना विषय करने के बाद में थोड़ा समय वेट कीजिए, प्रभु इसका जवाब क्या है।
आप क्या समाधान देते हैं, आपके रेस्पॉन्स क्या है, प्रभु जरूर आपसे प्रार्थना उत्तर देगा। ए मेरे प्रिय मित्रों, इस शाम को समय में मना से जब डिस्टर्स होता था और उसको समय में और परमेश्वर को उपस्थिति में आया, उनको खोजने लगा, तब उनको जीवन में सारा चीज परिवर्तन चेंज हो गया है। उसको बंदियों में लेके गया था, लेकिन परमेश्वर उनको प्रार्थना को सुनकर दोबारा यरूशलेम में लौट कर लेके आया। हालेलुया। हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर आज भी जीवित है। आप परमेश्वर के नाम में जो कुछ मांगोगे उसको जरूर देगा। हमारा परमेश्वर हम लोग को 1000 गुना आशीष देने वाला है। 1000-fold he will bless us. That's what Bible says. I will bless you 1000 folds. ये मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग छोटा मोटा देख चाहते हैं, ये थोड़ा से होने से ठीक है, हमको थोड़ा खाने के होने से ठीक है, हमको थोड़ा चलने के होने से ठीक है, थोड़ा मिलने से ओके, लेकिन परमेश्वर हमारे सोच से भी बढ़कर, हमारे बिंदी से भी बढ़कर, हमारा कल्पना से भी बढ़कर अधिक करने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ये मेरे प्रिय मित्रों, इस शाम को समय में आपके जो भी परिस्थिति है, आपके फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, आप तो क्रिश्चियन है लेकिन परिवार का अंदर में प्रॉब्लम है, हस्बैंड एंड वाइफ चिल्ड्रन का बीच में प्रॉब्लम है, और पेरेंट्स चिल्ड्रन का अंदर में प्रॉब्लम है, नहीं तो पड़ोसी के साथ प्रॉब्लम, कहीं काम करने के जगह में प्रॉब्लम है, मुसीबत है, मैं किसको बोलूंगा, मेरे प्रॉब्लम बाहर में नहीं बोल सकते हैं। ए मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर को उपस्थिति में आइए, परमेश्वर के चरणागत ले लीजिए, परमेश्वर को खोल कर बोलिए, यही मेरा प्रॉब्लम है प्रभु, आप हमको दया कीजिए। आज इस शाम को समय में डेफिनेटली God will listen to your prayer and God will respond to your prayer and he will rebuild your life. God will restore you. God will bless you again, once again. Whatever things you have lost, क्या क्या आपने नष्ट हो गया आपके जीवन में, वो सबको परमेश्वर ने दोबारा दूंगा। ए मेरे प्रिय मित्रों, इस शाम को समय में shall we look to the Lord in prayer, whatever the problem you are facing through, whatever the difficult situation you are going through, if anything which is evil in the sight of the Lord, remove it. Whether it may be a small tabich, a small ring with a stone, you are keeping your trust on the stone, remove it. Put all your trust upon the Lord. In all your ways, trust him and trust him alone. And because God alone can deliver you, God alone can give you comfort, God alone can give you good life, God alone can restore your all the things you have lost. Shall we look to the Lord? Prayer. You ask God to forgive you, whether God has to forgive you, restore you, whatever you want. You ask God in your difficult situation. You look upon the Lord. God will never leave you as an orphan, because he is always ready to listen to us. When God's children come to him with a contrite heart, with a broken heart, and with a real, kind of repentance, when we come to the presence of God, he will not ignore you. He will listen to you. He will respond you. He will restore you. He will relieve you. He will respond all your prayers. Shall we look to the Lord in prayer? Hallelujah, hallelujah. हमारा सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस शाम को समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जो कुछ वचन प्रभु आपने दिया है, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ प्रभु, जो मनासे ने किया उसी तरह प्रभु आपके दृष्टि में और कोई भी बुरा यदि हमारे अंदर में होने से प्रभु हम लोग को क्षमा कीजिए, उसको हम लोग दूर करते हैं, उसको हम लोग फेंक देते हैं प्रभु। आपके ऊपर ही हम लोग भरोसा रखते हैं, हमारा भरोसा केवल आपके ऊपर है, और दूसरा किसी के ऊपर में नहीं है, कोई मनुष्य के ऊपर में नहीं है, कोई तांत्रिक के ऊपर में नहीं है, कोई पत्थर के ऊपर में नहीं है प्रभु, केवल आपको ही हम लोग विश्वास करता हूं। आप ही हमारा खुदा, हमारा मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान, छुड़ाने वाला, रचाने वाला, हम लोग को बचाने वाला, हम लोग को सारे जरूरतों को पूरा करने वाला आप ही है प्रभु। आपके चरणों में समर्पण करता हूं। इस शाम के समय में क्या क्या प्रॉब्लम के साथ, क्या क्या डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ इस जूम में जुड़े हुए हैं और यूट्यूब में देख रहे हैं और फेसबुक में, सोशल मीडिया में देख रहे हैं प्रभु, इस समय में उन लोगों के जीवन में एक अद्भुत काम कीजिए प्रभु, चमत्कार काम कीजिए। ओ प्रभु, आप जीवित परमेश्वर, छुड़ाने वाला, छुड़ाइए प्रभु, हर एक अंधकारों को शक्तियों से छुड़ाइए, हर एक बीमारियों से प्रभु उन लोगों को रिलीफ कीजिए यीशु नसरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया।
आपके चरण में समर्पण करता हूँ। प्रभु हमारे अंदर में कोई भी आपके विरोध में काम है तो दया करके प्रभु आपके पुत्र यीशु के लहू में धोकर शुद्ध कीजिए प्रभु, पवित्र कीजिए प्रभु, पवित्र कीजिए, आपके योग्य संतान बनाइए। आपके चरणों में समर्पण करता हूँ, हर एक जन को आशीष कीजिए। इस प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु नसरी के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। आमीन।